Hello everyone, I am Dr. Rashmi Dwivedi, Associate Professor in Mechanical Engineering Department at Sister Gandhinagar, Bhopal. Today we are going to start Unit 4, Friction in Pivot and Collar Bearing and Clutches. In this unit, we will cover basically what are pivots, what are collars, what are different types of pivot bearings, what are different types of collar bearings, and we will derive an expressions of frictional torque with uniform pressure and uniform wear theory. We will also learn about the friction in general and thrust bearing and concept of friction circle and axis. We also learn about the single plate clutch, multi-plate clutch and cone clutch in this unit. So these are the topics which we will cover in this unit. So let us start the unit with the introduction of the pivot and collars. So pivots and collars क्या होते हैं? The shaft of ships, steams and water turbines are subjected to axial thrust. In order to take up the axial thrust, they are provided with one or more bearing surface at right angle to the axis of the shaft. That means कि जो आपके rotating shaft होते हैं वो axial thrust उनमें लगता है और bearing surface जो प्रोवाइड करते हैं उस axial thrust को सपोर्ट करने के लिए, टेकअप करने के लिए वो बेयरिंग सरफेस को हम कहते हैं पाइवोट्स एंड कॉलर्स. तो ये बेयरिंग सरफेसेस जो आपके एक्सियल थ्रस्ट को सपोर्ट करने के लिए लगाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं पाइवोट्स एंड कॉलर्स. और ये बेयरिंग सरफेस कैसे अपन अटैच करते हैं, लगाते हैं? These bearing surface are at right angle to the axis of the shaft. That means जो आपकी शाफ्ट होगी उससे राइट एंगल पे हम बेयरिंग सरफेसेस लगाएंगे. अब pivots and collars क्या है? These are the bearing surfaces. But किस टाइप के बेयरिंग सरफेसेस है ये इनके नेम से स्पेसिफाई करेंगे अपन. That means a bearing surface is provided at the end of the shaft. It is known as pivots. That means pivot bearings are the surfaces which are attached at the end of the shaft. That means अगर कोई shaft है, कोई rotating shaft है, उसके end point पे हम अगर bearing surface को attach करते हैं right angle पे, तो हम उसको बोलेंगे pivot bearing. And if the bearing surface is provided at any place along with the length of the shaft with bearing surface of the revolution is known as collar. That means कि अगर हम bearing surfaces को along the length of the shaft attach करते हैं, not at the end of the shaft, along the length of the shaft attach करते हैं या place करते हैं तो हम उसको बोलते हैं collar bearing. तो this is the basic difference between the pivots and collar bearing. What is the basic difference? When the bearing surface attached or placed at the end of the shaft, then this is known as a pivot bearing. And if the bearing surface is attached at any point along the length of the shaft, then this is known as collar bearing. So this is the basic difference between collars and pivots. So this is the introduction of pivot and collar bearings. Now pivots bearings are classified in three categories basically. Here I am mentioning only two, flat and conical, but these pivot bearings are basically classified in three categories. What are these categories? These categories are flat pivot bearing and conical pivot bearing, and one more types of pivot bearing is truncated pivot bearing. Pivot bearings are also known as footstep bearing. Pivot bearing footstep bearing क्यों कहलाएगी? क्योंकि देखिए pivot bearing कहाँ पे अटैच करते हैं हम? At the end of the shaft अटैच करते हैं. तो at the end of the shaft अटैच करने की वजह से हम इसको footstep bearing भी कहते हैं. अब
फर्स्ट हो गई फ्लैट पाइवोट बेयरिंग, सेकेंड इज कोनिकल पाइवोट बेयरिंग एंड थर्ड is the truncated pivot bearing. Here in 3 diagrams you can see that diagram A is showing the flat pivot bearing, diagram B is showing the conical pivot bearing and diagram C is showing the truncated pivot bearing. These are the example of the pivot bearing. You can see from the diagram according to shape of the bearing surface we can say it is a conical pivot bearing and it is a truncated pivot bearing and it is a flat pivot bearing. So ABC are the pivot bearings example. You can see in diagram D and E. Here the bearing surface is, this is the bearing surface. This is attached or placed at any position along the length of the shaft. डायग्राम डी में आप देखिए ये जो बेयरिंग सरफेस है जिसको हम जो आपका एक्सियल थ्रस्ट लग रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए बेयरिंग सरफेस जो अटैच कर रहे हैं वो अलोंग द लेंथ ऑफ द शाफ्ट अटैच कर रहे हैं. इसको हमने एंड पे अटैच किया था पाइवोट बेयरिंग को, लेकिन यहाँ पर हम अलोंग द लेंथ ऑफ द शाफ्ट अटैच कर रहे हैं. तो अगर हम इसको अलोंग द लेंथ ऑफ द शाफ्ट अटैच कर रहे हैं दैट मीन्स दिस इज द कॉलर बेयरिंग एग्जाम्पल. अगर ये हम सिंगल बेयरिंग सरफेस अटैच कर रहे हैं तो हम इसको सिंगल कॉलर बेयरिंग कहेंगे और अगर हम इसको n नंबर्स ऑफ कॉलर्स अटैच कर रहे हैं तो हम इसको मल्टीपल फ्लैट कॉलर. अब हम इसको फ्लैट क्यों कह रहे हैं क्योंकि बेयरिंग सरफेस आपकी कैसी है फ्लैट है, इसलिए हम इसको फ्लैट कॉलर बेयरिंग कह रहे हैं. ठीक है, तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ पाइवोट एंड कॉलर बेयरिंग्स. नाउ for designing the pivot and collar bearing, we can consider two assumptions. What are these assumptions? The first assumption is the pressure is uniformly distributed throughout the bearing surface, and second assumption is the wear is uniform throughout the bearing surface. That means किसी भी pivot and collar bearings को डिजाइन करने के लिए हम दो assumptions लेते हैं. First assumption is the uniform pressure and second is the uniform wear. अब यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी हम आगे जितने भी एक्सप्रेशंस करेंगे हम ये दोनों टर्म्स बार बार आएंगे. तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी का मतलब क्या है बेसिकली. यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी नाम से स्पेसिफाई हो रहा है कि द प्रेशर शुड बी यूनिफॉर्म. बट प्रेशर कहाँ पे यूनिफॉर्म होगा, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया कि पाइवोट एंड कॉलर्स आर द बेयरिंग सरफेस which are placed at the end of the shaft or at any position along the length of the shaft. तो इसमें शाफ्ट और बेयरिंग सरफेस एक दूसरे से मीट करती हैं. तो ये सरफेस क्योंकि शाफ्ट आपकी रोटेट हो रही है तो जो आपकी रबिंग सरफेसेस होंगी दैट मीन्स शाफ्ट और बेयरिंग के बीच जो रबिंग सरफेस होगी अगर वहां पे यूनिफॉर्म प्रेशर हम एज्यूम कर रहे हैं तो हम उसको यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी अप्लाई करेंगे वहां पे. और अगर जो आपकी मैटिंग सरफेसेस हैं वहां पे यूनिफॉर्म वेयर को हम एज्यूम कर रहे हैं अगर तो हम यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी अप्लाई करेंगे. अब यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी एंड यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी कहाँ पे अप्लाई होगी. यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी अप्लाई होगी वहां पर जहां पे आपकी न्यू बेयरिंग सरफेस होगी. न्यू बेयरिंग अपन अटैच करेंगे. तो जब न्यू बेयरिंग के केस में हम बात करेंगे तो हम यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी अप्लाई करेंगे. अब यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी कहाँ अप्लाई करेंगे. यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी जब आपकी बेयरिंग सरफेस जो होंगी वो ओल्ड होंगी. ठीक है, तो जब बेयरिंग सरफेस ओल्ड होंगी तो हम यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी अप्लाई करेंगे और जब बेयरिंग सरफेसेस न्यू होंगी तो हम यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी अप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट जो आपको याद रखना है वो यूनिफॉर्म प्रेशर या यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी कहाँ अप्लाई करना है. अब यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी दैट मीन्स P इज कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी का क्या मतलब है. व्हेन द बेयरिंग बिकम ओल्ड all parts of the rubbing surface will not move with the same velocity. जैसे जैसे आपकी bearing surface old होती जाएगी तो जो rubbing surface होंगी वहां पे सारे के सारे parts आपकी same velocity से move नहीं करेंगे.
because the velocity of the rubbing surface increases with the distance from the axis of the bearing. That means जैसे जैसे आप एक्सिस है, शाफ्ट की एक्सिस है, शाफ्ट अगर हम बेयरिंग सरफेस के ऊपर रख रहे हैं तो शाफ्ट की एक्सिस से हम जैसे जैसे दूर जाएंगे वहां पे वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी और शाफ्ट की एक्सिस के पास वेलोसिटी कम होगी. दैट मीन्स जब रेडियस कम होगी तो आपकी वेलोसिटी कम होगी, जब रेडियस ज्यादा होगी तो आपकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी. दैट मीन्स अगर हम यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी का मतलब ये हुआ कि आपका प्रेशर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं है. प्रेशर दैट मीन्स P इंटू V कॉन्स्टेंट है, सॉरी P इंटू V constant है, correct, and PV is constant. That means V is equal to V is linear velocity and V is equal to होता है omega R. तो V is directly proportional to R. So जहाँ पे velocity ज़्यादा है, velocity कहाँ पे ज़्यादा है? velocity ज़्यादा है जैसे जैसे हम एक्सिस से दूर जाते हैं, शाफ्ट के एक्सिस से दूर जाते हैं, वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी क्योंकि वहां रेडियस ज्यादा है. सिमिलरली अगर शाफ्ट के एक्सिस के पास रहते हैं तो वहां पे वेलोसिटी कम होगी क्योंकि वहां पे रेडियस कम है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो आपको यूनिफॉर्म प्रेशर यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी के केस में यही याद रखना है कि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी जो आपकी अप्लाई होगी वो आपकी न्यू बियरिंग के केस में अप्लाई होगी, यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी आपकी ओल्ड बियरिंग के केस में अप्लाई होगी. नाउ हम फ्लैट पाइवोट बियरिंग के डिजाइन करेंगे. तो फ्लैट पाइवोट बियरिंग के केस में हम फ्रिक्शनल टॉर्क का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे. अब फ्लैट पाइवोट बियरिंग का मतलब क्या है कि हम शाफ्ट की एंड पे हम जो बियरिंग सरफेस अटैच कर रहे हैं एक्सियल लोड को सपोर्ट करने के लिए वो कैसी है? फ्लैट है. इस डायग्राम से आप देख सकते हैं ये आपका शाफ्ट है. शाफ्ट आपका कैसा है? सर्कुलर है. ये हम टॉप से देख रहे हैं और अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा. अब शाफ्ट की जो रेडियस है वो कितनी है? कैपिटल R है. इसको हम शाफ्ट की रेडियस भी बोल सकते हैं या फिर हम आपकी बेयरिंग सरफेस की रेडियस भी बोल सकते हैं क्योंकि बेयरिंग सरफेस आपकी ये है. तो बेयरिंग सरफेस की जो रेडियस है वही हमारी शाफ्ट की रेडियस है. तो दिस शाफ्ट is attached with the flat pivot bearing. So let assume that capital W is the axial thrust or load on the bearing. इस शाफ्ट पे कितना एक्सियल थ्रस्ट लग रहा है? कैपिटल W. और क्योंकि अपन बेयरिंग सरफेस क्यों लगाते हैं? एक्सियल थ्रस्ट को सपोर्ट करने के लिए. तो एक्सियल थ्रस्ट कितना लग रहा है? W. तो ये जो W है कैपिटल W वो क्या है? लोड ऑन द बेयरिंग. जो बेयरिंग होगी वो कितना लोड सपोर्ट करेगी? कैपिटल W. कैपिटल R इज द एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द पिवोट. एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द पिवोट क्योंकि ये हमारी कैसे एट द एंड ऑफ द शाफ्ट हमने बेयरिंग सरफेस अटैच किए तो हम इसको पिवोट बेयरिंग करेंगे और ये फ्लैट है इसलिए हम इसको फ्लैट पिवोट बेयरिंग कह रहे हैं. तो इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल R. हम इसको बेयरिंग सरफेस की रेडियस भी बोल सकते हैं. P is the intensity of pressure per unit area of the bearing surface between the rubbing surface. That means जो P है वो क्या है? Intensity of pressure है per unit area. Mu is the coefficient of friction between the contacting surface. जो आपकी शाफ्ट है और बेयरिंग है उनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? क्योंकि दो सरफेस रब हो रही हैं वहां पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? म्यू. तो हमें अब क्या डिराइव करना है? हमको फ्रिक्शनल टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव करना है. तो फ्रिक्शनल टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे? एक एलिमेंट्री रिंग कंसीडर करेंगे. एक एलिमेंट्री रिंग कंसीडर करेंगे जिसकी रेडियस क्या होगी? स्मॉल r एंड थिकनेस dr. तो कंसीडर एन एलिमेंट्री रिंग of the bearing surface at a radius small r and thickness dr. अब मैंने आपको बताया कि हम किसी भी बेयरिंग को डिजाइन करने के लिए दो assumptions लेते हैं. What are these assumptions? The first assumption is when there is a uniform pressure and second assumption is when there is a uniform wear.
तो हम ये दोनों assumptions लेके फॉर्मूला डिराइव करेंगे, किसके लिए? फ्रिक्शनल टॉर्क के लिए। अब फर्स्ट केस है जब हमने यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी को अप्लाई किया। जब यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी आपकी अप्लाई होगी, दैट मीन्स P शुड बी कांस्टेंट बिटवीन द मेल्टिंग सरफेसेस। P जो है आपका प्रेशर है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बेयरिंग सरफेस के ऊपर। अब प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? लोड अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। और लोड हमारा कितना लग रहा है? लोड लग रहा है हमारा कैपिटल W। जो हमारी बेयरिंग सरफेस पे लोड लग रहा है, यहाँ पे हमने देखा था, वो कितना लग रहा है? कैपिटल W। तो कैपिटल W इज द टोटल लोड। और एरिया कितना है? एरिया है, क्योंकि रेडियस है आपकी जो शाफ्ट है वो सर्कुलर है, और सर्कुलर शाफ्ट को हमने फ्लैट पिवोट बेयरिंग पे रख दिया है, तो उसके एरिया कितना होगा? पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर है तो वहां पे पाई R स्क्वायर हो गया। अब ये तो आपका हो गया प्रेशर जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है फ्रिक्शनल टॉर्क की वैल्यू। तो फ्रिक्शनल टॉर्क निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो फ्रिक्शनल फोर्स पता करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें एरिया और प्रेशर पता होना चाहिए। अब एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमने एक रिंग कंसीडर की है, उस रिंग का मैक्सिमम रेडियस कितनी जाएगी? कैपिटल R। तो हमने रिंग जो कंसीडर की है उसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल r। एंड थिकनेस कितनी है? dr। तो एरिया ऑफ द बेयरिंग सरफेस कितना होगा? अगर हम इस रिंग को ओपन कर दें तो इसका एरिया कितना होगा? 2 पाई r, जो कि इसका सर्कमफ्रेंशियल एरिया है, 2 पाई r इंटू dr। तो एरिया कितना हो जाएगा? बेयरिंग सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू dr। अब लोड ट्रांसमिटेड टू द रिंग, रिंग पे कितना लोड ट्रांसमिट होगा? ये तो टोटल लोड है आपका, तो रिंग पे कितना लोड ट्रांसमिट होगा? डेल्टा W। तो डेल्टा W की वैल्यू कितनी होगी? डेल्टा W इज इक्वल टू होगा प्रेशर इनटू एरिया, बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? लोड अपॉन एरिया। तो डेल्टा W इज द लोड। कहां पर लोड ये अप्लाई हो रहा है? ये लोड अप्लाई हो रहा है रिंग पे। तो लोड ट्रांसमिटेड टू द रिंग, डेल्टा W इज इक्वल टू होगा P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया। अब एरिया किसका लेना है हमें? एलिमेंट्री रिंग का, क्योंकि लोड किसका है? एलिमेंट्री रिंग में कितना लोड ट्रांसमिट हो रहा है। तो दिस इज इक्वल टू P इंटू एरिया है 2 पाई r dr। तो ये आपका हो गया लोड ट्रांसमिटेड टू द रिंग। नाउ frictional resistance to sliding on the ring acting tangentially at radius r। अब क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा वहां पे, और फ्रिक्शन कैसा लगेगा? टेंजेंशियल लगेगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? म्यू इंटू डेल्टा W। तो डेल्टा W इज द लोड। तो ये जो है वो टेंजेंशियल लोड है, क्योंकि हमारा जो एक्शियल लोड, सॉरी, ये एक्शियल लोड है, तो हम फ्रिक्शन फोर्स निकाल रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा लग रहा है? टेंजेंशियल लग रहा है। तो टेंजेंशियल लोड जो आपका है, जिसको जो फ्रिक्शनल फोर्स है विच इज tangential which is acting on the tangential direction, the value of the tangential frictional resistance is equal to mu into delta W। तो म्यू की वैल्यू तो एज इट इज अपन पुट कर देंगे, डेल्टा W की वैल्यू अपन ने यहां से निकाल ली है, P इंटू 2 पाई R इंटू dr। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए। अब 2 पाई म्यू P R dr। अब ये वैल्यू है जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की है। यहाँ पे देखिए ये R क्या शो कर रहा है? दिस इज फॉर एलिमेंट्री रिंग। अभी हमने रिंग कंसीडर की थी, तो हमने फ्रिक्शनल जो रेजिस्टेंस निकाला है वो हमने एलिमेंट्री रिंग के लिए निकाला है। अब हम फ्रिक्शनल टॉर्क निकालेंगे। किसके लिए? रिंग पे जो फ्रिक्शनल टॉर्क लग रहा है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो बॉटम पे ये सबस्क्रिप्ट जो अपन R शो कर रहे हैं, दिस इज फॉर द एलिमेंट्री रिंग। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी? फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन द रिंग TR इज इक्वल टू FR इंटू स्मॉल r। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू रेडियस।
तो फोर्स आपका है, यहाँ पे आपने निकाल लिया फ्रिक्शनल फोर्स और रेडियस आपकी स्मॉल आर, क्योंकि हम एलिमेंट्री रिंग के केस में कर रहे हैं। तो 2 पाई म्यू पी आर इंटू डी आर इंटू आर, आर 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 स्क्वायर। तो फाइनल जो फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन द रिंग आएगा, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन द रिंग टी आर इज इक्वल टू 2 पाई म्यू पी स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब ये वैल्यू किसके लिए है? एलिमेंट्री रिंग के लिए है। एलिमेंट्री रिंग हमने कहाँ पे कंसीडर की है? एट ए रेडियस स्मॉल आर। अब वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? कैपिटल आर तक। वो मैक्सिमम देखिए कहाँ तक जा सकती है? ये जो आर है ये कहाँ तक जा सकती है? मैक्सिमम कैपिटल आर तक। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इस इक्वेशन सेकंड को हम इंटीग्रेट करेंगे 0 टू आर, तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क मिल जाएगा। तो इस इंटीग्रेट द इक्वेशन 2 विद इन द लिमिट 0 टू कैपिटल आर फॉर द टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हमने कैपिटल टी पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि अब हम एलिमेंट्री रिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क की बात कर रहे हैं। तो टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क कैपिटल टी इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to r 2 pi mu p r square into dr। r square dr का इंटीग्रेशन कितना होगा? x की पावर n dx, x की पावर n plus 1 upon n plus 1। तो r की पावर 2 plus 1 upon 2 plus 1, लिमिट लगा दी 0 to 3, तो 2 pi mu p कांस्टेंट, लिमिट लगा दोगे 0 कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे स्मॉल r की जगह हम क्या पुट करेंगे? कैपिटल R। तो 2 पाई म्यू p इंटू आर क्यूब बाई 3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 बाई 3 इंटू पाई म्यू p इंटू आर क्यूब। तो ये जो वैल्यू है दिस इज द टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क, टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क की वैल्यू है। अब देखिए हमने p की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है, क्योंकि प्रेशर आपका यहाँ पे हमने कौन सा एजम्पशन लिया है? यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी का। तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी दैट मीन्स P इज इक्वल टू W, कैपिटल W अपॉन पाई आर स्क्वायर। प्रेशर यूनिफॉर्म है, तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ये वैल्यू, तो यहाँ पे पुट कर देंगे P की जगह W बाय पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल, तो एक आर बचेगा यहाँ पे, तो एक्सप्रेशन क्या होगा? 2 बाई 3 इंटू म्यू डब्ल्यू आर। दिस इज द total frictional torque in case of a flat pivot bearing when the uniform pressure theory is applied। और अगर आपका शाफ्ट ओमेगा स्पीड से रोटेट हो रहा है तो पावर लॉस्ट इन फ्रिक्शन कितना होगा? दिस इज द टॉर्क ट्रांसमिटेड, फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड। तो पावर लॉस कितना होगा फ्रिक्शन की वजह से? P इज इक्वल टू टी ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए 2 पाई n बाई 60, टी ऑलरेडी अपन ने कैलकुलेट कर दिया, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर लॉस्ट इन फ्रिक्शन। ये हमारा हुआ फर्स्ट केस जब हमने यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी अप्लाई की है। सेकेंड केस है यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। यूनिफॉर्म वियर थ्योरी दैट मीन्स कि जो वियर है, वियर डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड द वेलोसिटी ऑफ द रबिंग सरफेस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट पी वी should be constant in uniform wear theory. That means at a higher radius the velocity should be higher and at a lower radius the velocity should be lower because V is directly proportional to R. So PV is constant for uniform because it is assumed that the rate of wear is proportional to the product and intensity of pressure and the velocity of the rubbing surface। तो velocity क्या होती है? V is equal to होता है ओमेगा R, that means PR should be constant। तो P is equal to C by R, मतलब प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होगा? जहाँ पे रेडियस कम होगी, और प्रेशर कहाँ पे कम होगा? जहाँ पे रेडियस ज्यादा होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जब आप यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी अप्लाई करोगे। तो लोड ट्रांसमिटेड ऑन द रिंग कितना होगा? देखिए लोड ट्रांसमिटेड ऑन द रिंग सेम जैसे अपन ने पिछले एक्सप्रेशन जब आपने यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी अप्लाई किया था, तो P इंटू एरिया, एरिया शुड बी सेम 2 पाई आर इंटू डी आर। द वैल्यू ऑफ P
द वैल्यू ऑफ P, दैट मीन प्रेशर की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी है। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में P की वैल्यू कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट, बट यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी में प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे अपन ने देखा P इज इक्वल टू C बाय R, तो P की वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे C बाय R, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 pi C into dr. दिस इज द लोड ट्रांसमिटेड ऑन द रिंग। अब टोटल लोड ट्रांसमिटेड टू द बेयरिंग सरफेस, अगेन हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाएंगे 0 to R, तो हमें टोटल लोड ट्रांसमिटेड आ जाएगा कैपिटल W। तो कैपिटल W इज इक्वल टू आ जाएगा 0 to R 2 pi C into dr। 2 pi C इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? R, लिमिट लगा दो 0 to R, तो 2 pi C कैपिटल R, तो C की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी विच इज ए कांस्टेंट, C इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल W बाय 2 pi R। तो यहाँ से हमारी C की वैल्यू आ गई और ये लोड ट्रांसमिटेड थ्रू द एलिमेंट्री रिंग की वैल्यू आ गई। अब फ्रिक्शनल टॉर्क कितना होगा? अगेन TR से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हम एलिमेंट्री रिंग की बात कर रहे हैं। फ्रिक्शनल टॉर्क हमने डायरेक्टली प्रीवियस एक्सप्रेशन से, ये जो यहाँ पे हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव किया था 2 pi mu P R स्क्वायर इंटू dr, डायरेक्टली ये पुट कर दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि फ्रिक्शनल टॉर्क तो वैल्यू वही होगी FR इंटू R, तो FR की वैल्यू भी वही होगी। अब हमको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी P की, क्योंकि P आपका यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी है, तो P की वैल्यू हम पुट करेंगे C बाय R। तो C बाय R पुट कर देंगे तो यहाँ से R से R कैंसिल हो जाएगा, एक R बचेगा यहाँ पे बस, तो 2 pi mu इंटू C इंटू R इंटू dr। तो दिस इज द फ्रिक्शनल टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिंग। अब टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क, अगेन हम इसको इंटीग्रेट करेंगे लिमिट 0 to R के बीच में, तो टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन द बेयरिंग सरफेस इज कैपिटल T इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग 0 to R 2 pi mu C R into dr, R dr that means R की पावर n+1, तो R स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे वैल्यू हम पूरी पुट कर देंगे, लिमिट लगा देंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा 2 pi mu C into R स्क्वायर बाय 2, this will be equal to pi mu C R square, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगेन हम C की वैल्यू निकाल चुके हैं कैपिटल W बाय 2 pi R, ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल टॉर्क ट्रांसमिटेड इन केस ऑफ ए फ्लैट पिवोट बेयरिंग व्हेन वी अप्लाई द यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी। तो अगर हम यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी की बात करें तो टोटल टॉर्क ट्रांसमिटेड कितना है 2/3 म्यू डब्ल्यू आर, और यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी की बात करें तो 1/2 म्यू डब्ल्यू आर। These are the expression of frictional torque in case of a flat pivot bearing in uniform pressure and uniform wear.